Okay, hi guys. A very good morning and a warm welcome to all of you on behalf of Facebook Tutorials. This is CA Shomodipto Das. Like we have invited you to our demo classes, I would like to, you know, uh, talk about everything as a first class and, people who are taking up commerce. Why do we take up commerce? What are the prospects of taking commerce? What lies ahead, and also in future what you can do staying in commerce. What are the future career prospects? Prior to everything, I must introduce ourselves as Facebook. What does Facebook do? And then I shall introduce myself being the mentor for today's first subject, which is the demo of accounts. And also, after the introduction, if possible, I will also like you guys to introduce yourselves to make it a little bit of interactive. And then lastly I would, you know start start with the subject. That is, I will introduce commerce and accounts to you, because today is the accounts class demo, and this is how we will go and carry on. So I have got the book. I will share the screen in a while, and you guys will be also be able to see the book and the syllabus and the chapters and so on and so forth. Okay. Firstly firstly I would like to once again request. There are a couple of people uh, who do not have their chat IDs, do not have their names on their chat IDs as participants. So I have pinged them personally and requested them to give me good morning. Yeah, requested them to give me their names. I do not have their names actually. As a precondition, we cannot allow anyone without their names and their registration, you know, which is free, of course, for our records. I need your name once again. I request. One is, there are a couple of people. I can only tell you. If I share the screen, it will become easy. Whom am I talking about? So uh, there are a couple of participants whom I want to please tell me your name, and then we can entertain you staying in the this session, because we have strict instructions and strict rule of, not allowing people who are not disclosing their identity. Okay, so that's a request. Okay, now now I will start today's class without any further ado. Prior to anything, once again, I am requesting the two students who did not, you know, write their name to please, uh, you know, write your name, and then we can maybe just uh, allow you. Okay. All right. I have chatted to you. Please check your chat box. Those of you from whom I have sought your names, please write back your names. Okay. All right. I'm starting, guys. In the middle of the session, if the people who did not write their name, if they are, you know, just out of the session, please do not mind and do not mind me, because we cannot help. Okay. So, okay, guys. Once again, a very warm welcome to all of you. Let us quickly begin our session for the day. I am CA Shomodipto Das, and I am one of the faculties in Facebook. And of course, Facebook is my brainchild, and I am also a co-founder of Facebook alongside two other co-founders, one of whom you'll get to meet pretty soon. He's the maths faculty of, Facebook Tutorials, Mr. Aditya Goenka. Okay, so sir, tell us about Facebook firstly. Firstly, I'll start by, you know, telling you, giving you a brief introduction on what Facebook is. Okay, all right. So let us
learn what is Facebook. Okay. All right. Some of you have seen our Facebook page and some of you have seen our YouTube channel. Some of you have read our posters and just joined in for the curiosity of how commerce classes will be. And, everything set aside, Face the Book is a commerce coaching center, is a commerce coaching center. Now, it is not like any other coaching center. It stands out. It stands out. It's one of a kind. Why, sir? Because कॉमर्स का कॉमर्स का कोई डेडिकेटेड कोचिंग सेंटर कलकत्ता में नहीं है, यानी कि we we only specialize in commerce. I myself am a CA, CS, IFRS. I have done a lot of degrees in commerce, apart from being BCom honors myself and commerce student from class 11 myself. Okay, so it was always my initiative. I always loved teaching, loved to interact with young people, young minds like you. And I always wanted to bring to you, bring to my students, quality education in the field of commerce. Quality education in the field of commerce. Why? Because when I was in class 11, I felt a little jealous of science students. I felt jealous. Yes, I'm repeating. मेरे को लगा साइंस वाले कितना अच्छे से पढ़ाई करते हैं और उन लोग को इम्पेटस भी ऊंचा दिया जाता है सोसाइटी में, स्टेटस भी उन लोग का ऊंचा रहता है. लोग सोचते हैं कि साइंस वाले ही पढ़ाई करते हैं, कॉमर्स वाले नालायक निकम्मे होते हैं. नहीं, ये सोच गलत है. पहला चीज मैं बोलता हूँ, ये सोच गलत है. और ये सोच का कारण भी इम्परफेक्शन है. इम्परफेक्शन क्या चीज में है सर? इम्परफेक्शन है मार्केट में. सर क्या चीज का मार्केट में? ट्यूशंस का मार्केट में. ट्यूशंस का मार्केट में, यानी कि सीधा बात, ट्यूशंस का मार्केट में अपने अगर बात करें तो ट्यूशन का मार्केट में अपने कोशिश करते हैं, कि स्टूडेंट लोग को क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए जो स्कूल में नहीं मिल रहा है. तो स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा है, इतना बड़ा बात कर दिए. देखो, हम सबको मालूम है कि स्कूल जाने के बाद भी हम लोग को ट्यूशन लगता है. This itself is the biggest proof of hypocrisy if we say we are getting quality education at school and we are also taking tuition. Okay, so the fact is school mein it is not always possible to cover the syllabus very methodically, conceptually, where all students are learning everything in school, and hence comes the tuition या प्राइवेट ट्यूशन. अब सर प्राइवेट ट्यूशन में आप बोल रहे हो कि कॉमर्स का डेडिकेटेड कोई कोचिंग सेंटर है नहीं. आप ढूंढ के देख लो, कलकत्ता में कहीं भी इस लेवल में, जिस लेवल में हम लोग ऑपरेट करने चाहते हैं, इस लेवल में कलकत्ता में कोई कॉमर्स डेडिकेटेड ट्यूशन नहीं है. सो ये सोच अपना अलग है, थोड़ा हटके है. दैट्स व्हाई आई सेड वी स्टैंड आउट. FTB or Face the Book coaching is dedicated commerce coaching center. Okay, now sir, what else do we need to know about Face the Book? How else does it stand out? Faculties sir, how faculties कैसे अलग है? Faculties अलग है. Of course, the first faculty in the lineup whom you are interacting with is me directly, 101. Okay, so I teach the most important subject in commerce, which is accounts, which we will learn today. Okay, accounts. So accounts ka faculty is me, whose qualification is CA, CS, IFRS. Okay, I am a faculty of CA students only in CA Foundation. There's a course of CA का पहला जो कोर्स है CA Foundation का बहुत फेमस फैकल्टी हूँ, खुद ही बता रहा हूँ, Pan India. And I used to teach CA only, but Face the Book में it is my initiative, of course, we are doing class 11, 12 commerce, BCom and CA Foundation. And CA का higher studies मैं अलग से पढ़ाता हूँ. That is my introduction as well. Okay, I had worked in the industry till 2015 alongside teaching.
तब पार्ट टाइम पढ़ाता था, टाइम नहीं मिलता था नौकरी करते करते। उसके बाद फुल टाइम प्रैक्टिस में आ गया। सीए लोग फर्म खोल के प्रैक्टिस करता है, तो आई हैव माय फर्म and I have my education business. Okay, so that's about me, my background. Now with me has partnered a very talented young teacher named Aditya Goenka sir. Now Aditya Goenka is a specialist in maths and computers. He's a specialist in maths and computers. उनका फोटे है मैथ्स। आप लोग सुने होंगे एक एग्जाम होता है कैट, सीएटी। कैट का मैथ्स बहुत ही टफ होता है। टफ नहीं होता है बट मतलब एकदम जल्दी से आंसर करना एमसीक्यूज बहुत ही मुश्किल काम होता है उतना कम समय पे। तो कैट का जो प्रेशर वाला सिचुएशन में कैसे मैथ्स के लिए ट्रेन करे, इसलिए कैट का कोचिंग सब लोग लेता है। आदित्य गोयंका सर इज अ वेरी फेमस नेम इन द फील्ड ऑफ कैट. Is associated with another coaching called Career Launcher, which is dedicated and specialized in CAT. He has taught in many other coachings, and he's a very famous and big name in CAT. So you can understand his expertise in maths and teaching maths in class level. Okay, so faculties का lineup दोनों जो आप फेस द बुक का 11-12 का इस बार का इस सेशन का फैकल्टीज लाइनअप है। अकाउंट्स विल बी टॉट बाय मी. वी हैव शेयर्ड द रूटीन and I'm introducing the faculties to you so that you know everything on the first day. देखो अपने कोई भी लाइफ में डिसीजन लेने के लिए इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना अच्छा होता है या अनइन्फॉर्म्ड? इन्फॉर्म्ड. तो मैं इंफॉर्मेशन आप लोग को दे रहा हूँ, अभी आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओगे। आज का क्लास इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन एंड ऑफ कोर्स आई विल शो यू अकाउंट्स आल्सो सो दैट यू कैन take the decision based on a class. Okay, so accounts is me, and then we have maths. For the maths we have Aditya sir, and for for eco we have Chandradeep sir. I have mentioned Chandradeep sir in the routine you've seen. He's taking eco and BST. So 2 theory subjects are there in commerce. It's optional, not that you have to take both. So 2 theory subjects are there. One is eco, the other one is BST. We have got faculties for both eco and BST, which is Chandradeep sir. And for English also, Chandradeep sir can teach. And let me tell you about him. He's a former student of mine. He's a former student, CA student of mine, who is also a very talented filmmaker. Okay, so in our coaching we have a gamut of widespread talent also, and we are proud of that because he's a award-winning filmmaker, arts and docu features, that kind of. And Chandradeep Das, his full name. So he's also my school junior, come my student, come in CA also. He have passed. So about him you will get to see when you attend his eco class. He's very academically sharp and he likes to teach like me, and hence he has been given this opportunity to teach alongside me in Facebook. And he will be taking your eco class today and tomorrow also for BST demo. He will be the faculty. Okay, so that's our lineup, very modest lineup we have there. And then I was saying, why face the book? What are the features of Face the Book? One is we are dedicated commerce coaching center, and second one is we have specialized faculties. देखो accounts के लिए CA से बेहतर कोई नहीं रहना चाहिए, और maths के लिए कोई engineer से बेहतर, MTech से बेहतर, और जो खुद maths का specialist teacher है CAT level में, वो भी उनसे बेहतर कोई रहना नहीं चाहिए। Chandradeep sir का forte है English. I'm telling you, forte is English. BST is a very general theory subject which will deal very with finesse. And eco of course एक CA level का student का, ये CA level का लिए, CA level के लिए eco is very noble and आसान subject. Okay, so please do attend the demo. Rest of the demo lined up.
today afternoon at 2, then tomorrow at 11:30 maths, and tomorrow at 2 p.m. once again BST, to see the entire lineup yourself. Okay, now what are the other like things about Facebook we need to know, sir? Okay, I have a teaching experience of over 12 years. You can imagine when Chandradeep sir was in class 9, you'll see him. He used to take classes from me. So you can imagine how long I am teaching for. That doesn't mean I'm like, 50, 60, very old. I'm very young myself. I have started teaching, from my college days or, before that. And then I kept on teaching throughout my work life also. And for the past 5 years, I have been a dedicated teacher of CA. And now Face the Book is our initiative as a, token of appreciation, or as a, to promote it with its vision and mission. We want to bring classes of commerce to you. Why? Because we know, मैं जो बोल रहा था, हम लोग का फिलोसफी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना, आपके लिए जानना। क्या सर? फिलोसफी ये है कि क्लास 11 में उठ के साइंस वालों के लिए रहता है बहुत सारा इंस्टीट्यूट, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आकाश वगैरह, ठीक है, बहुत सारा इंस्टीट्यूट है जो स्पेशलाइज्ड उन लोग को एकदम ट्रेन कर देता है पूरा 12th के बाद से करियर मैप करके उन लोग को एकदम बैठा देता है। बट अपने कॉमर्स वालों के लिए ऑलवेज एक वॉइड मिला। वॉइड मतलब एम्प्टी स्पेस। सर क्यों ये एम्प्टी स्पेस है? क्योंकि कोई स्पेशलाइज्ड कोचिंग सेंटर है ही नहीं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेन टू रन अ कोचिंग सेंटर, बट स्पेशलाइज, बिकॉज स्पेशलाइज में तो स्टूडेंट्स कम होगा, बट स्टूडेंट्स का जो बेनिफिट होगा स्पेशलाइज में वो कोई भी कोचिंग सेंटर में नहीं होगा, because we specialized in this area itself so that we can impart quality to you. We are all specialists, and I have aggregated only specialists to bring to you quality education, so that abhi se inspire hoke you know the best of the career options post 12, and you can map your career like science people do. So CAT हो, CA हो, दोनों के लिए बेस्ट मेंटोर्स से क्लास 11 से पढ़ के जान के अगर शुरू कर देते हो तो 11-12 तो इंश्योर होगा ही। 11-12 अगर अच्छा मार्क्स इंश्योर हुआ तो अच्छा कॉलेज इंश्योर हो गया, और करियर मैप भी पहले से पता रह गया। इससे बेहतर और क्या कर सकते हो तुम तुम्हारा करियर के लिए? This is the philosophy of Face the Book. Now it's up to you to decide what you choose. Sir, what about school teachers providing tuitions? Honestly speaking, very honestly speaking, स्कूल में जिनका क्लास आपको अच्छा नहीं लगता है, जिसकी वजह से आप ट्यूशन लेना चाहते हो, या स्कूल में जो समझ में नहीं आ रहा है जिसका वजह से आप वापस जाके घर जाके ट्यूशन लेना चाहते हो, तो वही आदमी के पास अगर वापस जाओ, डू यू थिंक इट्स गोइंग टू वर्क? आई फाइंड इट वेरी क्लमजी, क्लटर्ड, बिकॉज ये मैं खुद का एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मेरा भी सेम समस्या मेरे को फेस करना पड़ा था व्हेन आई वाज इन स्कूल। Okay, I'm born and brought up in Calcutta. I did my schooling from South Point High School. Okay, so pretty much a Calcutta boy like most of you. Okay, so the idea is, when I was in school in commerce, when I had taken up, I had the similar problems. I was looking for a perfect mentor. I always looked for a perfect teaching, teacher, guide, mentor, whoever, philosopher, whatever you may call. I could not get one, and due to the deficiencies which I found, I tried to compensate them myself by reading books, studying, and teaching myself. And that's how eventually I became a teacher. Okay, so that is the first thing which I need to tell you. I hope whatever I have communicated made sense to you. I have introduced to you Face the Book. I have told you what faculties we have, who are the faculties here, what we do, and I am telling you why a specialized coaching center and specialized, commerce specialists are required to be your guide, to guide you throughout your academic session. Now, the third point which I like to keep before going ahead and rolling and moving and starting with the commerce का knowledge and accounts का knowledge, मैं दो चीज और बोलना चाहता हूँ एकदम छोटा करके। ये साल जो है 2020,
it stands out or it is a normal year like any other year? Of course it stands out. Don't have to chat and write me. I know guys, it stands out for all of us in our lives. We have never seen a year like 2020. सर आप जन्म से ऐसा कभी साल नहीं देखे? नहीं, कैसे देखूंगा, मेरा भी तो ठीक है। मैं लास्ट 35 years में I haven't seen, since my birth I am telling you, I haven't seen a year like this. I haven't. None of us, even your parents probably haven't seen such a year. Why sir? The reason is the pandemic of this scale has never occurred globally. Number two, alongside the pandemic, कलकत्ता में तो तूफान वगैरह वो ठीक है, बट तूफान का भी मैग्नीट्यूड काफी हाई था. एंड लास्टली द इकोनॉमिक तूफान जो आने वाला है. सर व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक तूफान? आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो तो आप लोग को पता रहना चाहिए इकोनॉमी के बारे में थोड़ा बहुत. अभी इंडियन इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी दोनों डाउन है या अप है? बहुत डाउन है सर, बहुत डाउन है, इतना तो सबको ही पता है. बहुत डाउन रहने का कारण क्या है? डिमांड नहीं है मार्केट में. ये मार्केट डिमांड टेक्निकल शब्द है, सारा इको में समझाया जाएगा, चौधरी सर कई सब्जेक्ट है, ठीक है. तो ये जो मार्केट में डिमांड कम है, जिसके वजह से कैश कम है इकोनॉमी में, और कैश कम है इसीलिए डिमांड भी कम है. तो इट्स लाइक अ विशियस सर्कल. अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये सारा चीज का एडवर्स इफेक्ट्स on the economy is alarming, and that is why this year stands out, and that is why I tell you to counter all the risks, face the book. हम लोग तय किया है, because we have taken a bold decision to help you from this year onwards, this academic session onwards. We have announced a very, 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 very bold plan. We have come up with live online classes का मतलब हमने पूरा सेशन जो है, this session academic calendar 2021, we will be teaching you live online. मतलब जो क्लासेस होता है आप लोग जाके ट्यूशन टीचर के पास पढ़ते हो, कोचिंग में जाके पढ़ते हो, वही क्लास यहाँ पे ऑनलाइन करोगे लाइव. सर लाइव पढ़ने का मजा क्या आएगा? हाँ देखो, अभी सेशन ऐसा 5 सेशन होगा तो समझ जाओगे, कल तक तो 4 हो ही जाएगा. बहुत आनंद है. और सबसे बड़ा इसका बेनिफिट अपने पूरा देश को मिलेगा. अपने निकलेंगे नहीं घर से, ट्यूशन के लिए आप निकलोगे तो सोचो कितना परेशानी होगा दुनिया में, बाहर में. एक तो ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज बिखरा हुआ रहेगा. आपको परेशानी होगा, आपको टाइम ज्यादा लगेगा. ट्रैवल टाइम आपका अगर कम होता तो अभी डबल हो जाएगा, जितना लगता है नॉर्मल से डबल हो जाएगा. उसमें से आप सब कुछ मैनेज करके ट्यूशन के लिए वापस निकलोगे, स्ट्रेस होगा, पेरेंट्स का खर्चा बढ़ेगा, ट्रैवल कॉस्ट बढ़ेगा. तो ये सारा चीज दिमाग से हटा के अगर ऑनलाइन क्लासेस अपने करते हैं, और सबसे बड़ा रिस्क क्या है बाहर जाने का? कोविड. सो द आइडिया इज, अगर सब कुछ हटा के हम लोग कोशिश करते हैं कि घर में रह के पढ़ाई करें, और ट्यूशन भी अपने okay, just a moment. There's a yeah, Chiranjit, you can ask your friend to come back if he can. I had announced that जितना भी जन आपका देखना चाहता है ये सेशन, अपना नाम बता दे, जाके अपने नाम रख पाए. तो आपका दोस्त शायद नाम नहीं बताया था, तो अपना एक नॉर्म है कि जो नाम नहीं लिखा रहेगा चैट आईडीज में तो अपने मैच नहीं कर पाते हैं. तो इसीलिए आपका दोस्त को थोड़ा बोल देना, ठीक है? आई होप इट्स क्लियर. He did not tell us his name and we couldn't register his name, and hence like
we had to, and I was keeping on asking and alarming and telling that नाम बताए, उसका नाम लिखा ही नहीं था। तो आप एक बार उसको वापस लिंक भेज दीजिए, वो नया लिंक से ज्वाइन कर पाएगा, ठीक है। और अगर नहीं कर पाता है तो बोलिए कि दूसरा गूगल अकाउंट से ज्वाइन करे, he can join, and this session I am recording I will give to him, and you guys also can share to all of your other friends. I'm sorry for that. Thank you, Chiranjit. Okay, so like I was saying that ये जो टाइम्स है, पैंडेमिक का टाइम्स, कोविड-19, इस टाइम में निकलना इटसेल्फ इज रिस्की, बट अपने को निकलना पड़ेगा। तो अपने ये इंश्योर करेंगे ना कि एकदम जरूरी नॉन रिपीटेटिव, आई रिपीट, आप लोग निकले। ट्यूशन इज रिपीटेटिव और नॉन रिपीटेटिव सर, हफ्ते में 3 दिन 4 दिन निकलना पड़ेगा, तो वो निकलने से तो रिस्क ले रहे हैं अपने ना। और वही चीज अगर घर में बैठ के लाइव ऑनलाइन हो जाए, इससे बेहतर और क्या हो सकता है, क्योंकि ये पैंडेमिक का जो दवा नहीं निकला, जिसका कोई वैक्सीन नहीं है, व्हाट आई मीन टू से नाउ, ये वैक्सीन निकलते कब हो जाएगा, 2021 हो जाएगा, क्योंकि मास प्रोडक्शन होगा। ग्लोबल पॉपुलेशन इज 7 बिलियन, ओवर 7 बिलियन ऑफ कोर्स, सो 7.5 बिलियन पॉपुलेशन के लिए जो अगर ग्लोबल स्केल का पैंडेमिक है, तो अगर दवाई या वैक्सीन बनाने जाओ तो उतना प्रोडक्शन के लिए भी तो 1-1.5 साल लग जाएगा। तो सोचो, अपने अगर फ्यूचरिस्टिक और दिमाग से सोचे, ये पैंडेमिक में अपने को निकलना नहीं चाहिए, जितना कम हो सके उतना निकलना चाहिए। और रिस्क क्यों ले, अगर लाइव ऑनलाइन क्लास मिल रहा है तो उसमें तो सेम मजा है, और वीडियो बैकअप भी मिल जाएगा अगर कोई क्लास मिस करूँ तो this is the announcement and this is the relief which we are trying to give and bring to our beloved students at Face the Book. And sir, अगर कोई लाइव एकदम फेस टू फेस पढ़ना चाहता है तो उनको मोस्ट वेलकम। वी हैव आवर कोचिंग सेंटर नियर देशोप्रिय पार्क, गरियाट देशोप्रिय पार्क, दैट एरिया, साउथ कोलकाता। Okay, we have our coaching center, so you can come down and also take the classes here face to face. But then again, it's a risk, it's always a risk. I will never want my students or anyone to take unnecessary risk, क्योंकि क्लास अगर लाइव ऑनलाइन हो रहे, मेरा ट्रैवल कॉस्ट बच रहे, मेरा टाइम कॉस्ट बच रहे, मेरा रिस्क बच रहा है, रिस्क नहीं ले रहा हूँ बाहर निकलने का, तो बस ये साल में तो वही चाहिए। तो 2020 जो स्टैंडिंग आउट वाला साल है, ये 2020 साल में अपने को ये इंश्योर करना चाहिए कि अपने सबसे कम निकले, और एट द सेम टाइम अपने निकले तो प्रिकॉशंस लेके निकले, और ट्यूशन के लिए निकले ही नहीं। ट्यूशन अगर लाइव ऑनलाइन बेस्ट फैकल्टी से अगर मिल जा रहा है तो फिर और क्या चाहिए, बेस्ट ना हो ऑप्टिमम से मिल रहा है तो फिर और क्या चाहिए। मैं बोल लो कि मेरे को ज्वाइन करो ना करो, पेज द बुक में पढ़ो ना पढ़ो, कहीं और पढ़ो, ये सारे जनरल गाइडलाइंस याद रखना। ओके, दिस इज अ वेरी 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 बिग एडवाइस फॉर दिस ईयर 2020। ओके, नाउ सर, like you have started by introducing Face the Book, you have said the faculties who are the faculties here, and then I have spoken about 2020 as a year. मैं हर चीज को पॉइंट्स में लिख ले रहा हूँ, 2020 स्पेशल ईयर। So I am advising live online classes, although we are providing live online and face to face classes both. Okay, live online classes are advisable, time बचेगा। एंड लास्ट अनाउंसमेंट, मैं बोला था 2 चीज बोलूंगा पढ़ाई में घुसने से पहले। अपने इकोनॉमी के बारे में बात किए तो सबका घर में, बी इट अ बिजनेस फैमिली और बी इट अ एम्प्लॉयमेंट में किसी का फैमिली मेंबर्स है, सबके घर में अभी इकोनॉमिक क्राइसिस ना चले, टच वुड, बट इनवेरिएबली क्रंच होने वाला है। सर आपको कैसे पता? भाई सीए हूं, इकोनॉमिक का सेंस है, और ये सीए ना होने से भी, इकोनॉमिक का सेंस ना रहने से भी एक बेसिक सेंस सबका है कि देश में क्या हालत चल रहा है, ग्लोबली ये हालत चल रहा है, कुछ किया नहीं जा सकता है। और इंडिया बीइंग अ पुअर कंट्री, सर इंडिया इज अ पुअर कंट्री, यस
सर बट ये तो अपने तो बोल रहे हैं अपने सुपर पावर हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, नहीं वो सब दिखावा है। देखो अल्टीमेटली देश में देयर आर पीपल, देयर आर माइग्रेंट लेबर who are not getting food and dying. So you can pretty much be a judge. खाना नहीं मिल रहा है, लोग मर जा रहे हैं, तो इससे बड़ा प्रूफ क्या है? इंडिया इज पुअर कंट्री, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर आर हियर। सो द आइडिया इज सर, तो अपने को क्या करना चाहिए एज स्टूडेंट्स, एज यू नो यंग माइंड्स? खर्चा कम करना है, और इसी बात पे अपने पेज द बुक का जो फीस स्ट्रक्चर भी रखे है, बहुत ही इकोनॉमिक रखे। Of course, after doing all the demo classes, or after doing the demo classes, you guys will get in touch with us. We have shared our numbers on the poster. Once again, I'm sharing my number, which is my direct number. Whatever you need to, say or do, you can just get in touch with me directly, and I can provide you with the other numbers of our coaching. And in this number, sometimes you won't get me on call. मेरा कॉल नहीं लगता है कभी कभार, बट यही नंबर मेरा क्लास 12 का नंबर है अभी तक, एकदम ट्रांसपेरेंट ऑनेस्ट आदमी, कभी बदलना ही नहीं पड़ा, ठीक है? तो यही नंबर मैं अभी भी यूज करता हूँ, बट कभी कभार कॉल नहीं लगता है नेटवर्क इश्यूज के वजह से। तो आपको अगर कॉल नहीं लग रहा है तो व्हाट्सएप कर दो, मैं हमेशा रिस्पॉन्ड करता हूँ। सम ऑफ यू हैव सीन, ओके? सो एनीवे, so like I was saying that we are providing a very economic fee structure, which is a good news for the student community, of course, and especially in this year. Okay, so these are the things which administratively I needed to tell you. सर आपका लाइव ऑनलाइन क्लासेस कैसे होगा? हम लोग जून से, यानी कि कमिंग वीक से फुल फ्लेजेड क्लासेस शुरू करेंगे। आज और कल डेमो क्लास है फ्री का, आप और आपका दोस्त लोग को स्वागत है, और बाकी क्लासेस के लिए आप लोग सब मिलके कर सकते हो। Then you guys take a call and take your admission as soon as possible. Talk to us, share with us your problems. We will try and help you, and without any hesitation, start your journey. So that's the advice. Like I said, science वाले करियर में आगे क्यों रहते हैं? बिकॉज वो लोग आगे स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 का पढ़ाई साइंस का जितना भी लड़का लोग है सब स्टार्ट कर दिया, लड़का लड़की, ठीक है? बट कॉमर्स वाले क्यों पीछे रहते हैं? क्योंकि कॉमर्स वाले ना सोए हुए रहते, अपना कोकून शेल में रहते। वी आर नो लेस, सम ऑफ अस आर बेटर, but we have been made to feel so. Why? Because वही सोशल माइंडसेट, ठीक है? सोशल माइंडसेट, तो सोशल माइंडसेट की वजह से अपने वी हैव बीन मेड टू फील सो। ओके, सो द आइडिया इज सर, अपने 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 फिर क्या करना चाहिए? कॉमर्स वालों को अभी से स्पेशलाइज्ड कोचिंग क्लास लेना चाहिए, और करियर में क्या करेगा, सीए, एससीसीए, सीएस, सीएमए, ये सब पहले से सोच के रखना है, या एमबीए करना है, और उसी तरह से प्रिपेयर अभी से करना है जैसे साइंस वाले करते हैं, ठीक है ना? तो यही चीज है, साइंस वाले करते हैं इसलिए अपने नहीं करेंगे। सक्सेसफुल पीपल डू इट, दैट्स व्हाई वी विल डू इट, एंड दैट्स व्हाई दे आर सीन एज सक्सेसफुल, वी आर नॉट। ओके, नाउ सर व्हाट एल्स? अभी और कुछ नहीं बोलना है, मैं पूरा ज्ञान दिया आधा घंटा से। अभी मैं शुरू करूंगा विथ कॉमर्स का ज्ञान, डायरेक्टली टेक्निकल पढ़ाई वाला ज्ञान में आऊंगा। आज अकाउंट्स क्लास है, अभी अकाउंट्स पढ़ाऊंगा। अकाउंट्स पढ़ाने के बाद हम लोग 5 मिनट बातचीत करेंगे, Q&A सेशन रखेंगे, जहां पे यू कैन कम्युनिकेट टू मी योर टेक्निकल डाउट्स एंड अदर डाउट्स, and then we will be off by 1. Okay, so that's the plan. Let me start once again. Okay, once again, now कॉमर्स में रखा क्या है सर, ये तो बताइए, फिर अकाउंट शुरू करना। मैं बता दूं, कॉमर्स shall be taken up by people, or is taken up by people who love to do business,
who love to do business. Accounts is a subject which is the language of business. बिजनेस को समझने के लिए बिजनेस का भाषा है अकाउंट्स, जो हम लोग सीखेंगे. मैथ्स तो साइंस का है नहीं, साइंस का भी है, कॉमर्स का भी है. मैथ्स इज अ सब्जेक्ट विच कैन बी यूनिवर्सली अडॉप्टेड एंड यूज्ड, यूटिलाइज्ड, अप्लाइड. हिस्ट्री में भी मैथ्स लगता है. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वो भी तो मैथ्स है. व्हाट इज क्रोनोलॉजी? इन द ऑर्डर ऑफ टाइम. Okay, so maths can be exploited or used in any field. तो कॉमर्स में यूज होता है, हाँ, बम्पर यूज होता है, बहुत सारा यूज होता है. इको में, इकोनॉमिक्स में मैथमेटिकल मॉडल्स लगता है, स्टैटिस्टिक्स लगता है, बीकॉम में लगता है. कैट जो देगा उसको तो लगेगा ही, कैट तो कोई भी दे सकता है. सर सीए में फाउंडेशन में है, हाँ, सीए फाउंडेशन में मैथ्स है. तो मैथ्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अलोंगसाइड अकाउंट्स, द टू पिलर्स. एंड ये दो सब्जेक्ट का अपने जो फैकल्टी लाइनअप है, खुद के बारे में नहीं बोलूंगा, बट आदित्य सर इज रियली एक्सपीरियंस टीचर. ओके, नाउ सर, और कॉमर्स में क्या क्या होता है? कॉमर्स में और एक चीज होता है, इको. इको इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ एनी कंट्री और एनी प्लेस or any household even or any entity, business organization. तो इको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है. और लास्टली, बहुत लोग को मैथ्स नहीं मिलता है. मैं अभी से बोल दे रहा हूं, जिन लोग को मैथ्स मिलता है मैथ्स लेना चाहिए. जिन लोग को मैथ्स नहीं मिल रहा है वो लोग कैसे लेगा? उन लोग के लिए फोर्थ सब्जेक्ट हो जाता है बीएसटी. बीएसटी सर, ये बीएसटी क्या है? बीएसटी एक थ्योरी पेपर है जिसमें न्यूमेरिकल कुछ नहीं रहेगा, अकाउंट्स की तरह या मैथ्स की तरह बिल्कुल नहीं है, बट बिजनेस के बारे में थ्योरेटिकल ज्ञान है. कुछ भी नहीं, आसान है. हाँ, तो सर मैथ्स अगर नहीं मिले तो बीएसटी लेना चाहिए. हाँ बिल्कुल, नहीं तो मैथ्स, इको एंड अकाउंट्स तो रहना ही चाहिए. अकाउंट्स सबका रहेगा. ओके सर, ट्यूशन कौन कौन सा सब्जेक्ट में लगता है? अगर मेरा बात मानो तो ट्यूशन तो चारों सब्जेक्ट में ही लगता है. बट हाँ, इनडिस्पेंसिबल अगर पूछो, इनडिस्पेंसिबल तो फिर अकाउंट्स, मैथ्स एंड इको. इको फिर भी कुछ लोग खुद से पढ़ने का कोशिश करता है, थ्योरी है ये सोच के, बट वो थ्योरी नॉर्मल थ्योरी नहीं है, टेक्निकल थ्योरी है, समझने लायक, समझने वाला, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाला. ओके सर, ये क्या आप आईएससी, सीबीएसई, वेस्ट बंगाल बोर्ड तीनों कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बोल रहे हो? हाँ, अभी तक जो जो बोला तीनों के लिए बोला. आईएससी वालों का, सीबीएसई वालों का एंड वेस्ट बंगाल बोर्ड या कोई और बोर्ड वालों का. अब इसके बाद आते हैं, सर आपका क्लासेस जो होगा आईएससी सीबीएसई अलग नहीं होगा? हाँ अलग होगा. जहां पे अलग है टॉपिक अलग होगा, जहां पे एक है कॉमन होगा. तुम लोग को एक टॉपिक कॉमन सीखने में क्या हर्ज है? अच्छा सर, इसमें तो दिक्कत नहीं है, कभी सोचे नहीं? हाँ, हर सब्जेक्ट में. ओके सर, नाउ once you have taken commerce, accounts is the subject which I will deal with. But prior to starting with accounts, I will firstly tell you about accounts. Okay. We are into business. Let's say we are into business. हम लोग बिजनेस करते हैं. अच्छा, बिजनेस जो कर रहे हैं, बिजनेस में क्या होता है? सोचो, इमेजिन करो मेरे साथ. All of you, please imagine with me. What do we do in business? We buy goods, we sell goods, we buy goods at a lower place, at a lower price, and we sell it at a higher price. Sir, what else do we do? We manufacture goods and sell. मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो तो मैन्युफैक्चर करके बना के गुड्स बना के बेचूंगा, और अगर ट्रेडिंग बिजनेस में हो तो गुड्स खरीद के बेचूंगा. ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर सुने ही हो, समझे ही हो.
सर इसके अलावा हम लोग सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। हम लोग टीचिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वी टीच पीपल। ओके, मेरा सीए फर्म जो है वहां पे वी प्रोवाइड ऑडिट एंड एश्योरेंस सर्विसेज, वी ऑडिट बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। ओके, टैक्स का कंसल्टिंग करता हूं वहां पे, टैक्स का एडवाइस देता हूं, कॉर्पोरेट लॉ का एडवाइस देता हूं, लॉ पढ़ाता भी यूसीए में, लॉ एंड अकाउंट्स। सो सर, तो बताइए एक चीज बताइए, ये जो आप बोल रहे हो अपने बिजनेस करते हैं, बिजनेस करने के लिए हम लोग बहुत सारे खर्चा करते हैं। हाँ, बिजनेस करने के लिए हम लोग बहुत सारे खर्चा करते हैं, और बिजनेस करके बहुत सारे कमाई होता है। हाँ, कमाई भी होता है, और चारों डिफरेंट सोर्सेस से हो सकता है। हाँ, डिफरेंट सोर्सेस से हो सकते हैं, और सर डिफरेंट सोर्सेस में डिफरेंट एक्सपेंडिचर भी हो सकते हैं। हाँ, अच्छा बोलो, कितना खर्चा और कितना इनकम हुआ साल में 365 दिन? तुम क्या वर्बली बोल पाओगे, या रिकॉर्ड मेंटेन करने से तुम्हारा सुविधा है? रिकॉर्ड मेंटेन करने से सुविधा है सर, तो वही तो है अकाउंट्स। अकाउंट्स का हिंदी और बंगाली और कोई भी लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं? हिसाब किताब। हिसाब किताब, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वही है अकाउंट्स। हिसाब किताब मेंटेन करने के पीछे एक ही मकसद है, बिजनेस को समझना और बिजनेस में क्या हो रहा है ये नोट करना, रिकॉर्ड करना, और रिकॉर्ड करके उसको एनालाइज करके रिफ्लेक्ट करना। हाँ सर, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि मैं अगर बिजनेस कर रहा हूं, ये बिजनेस से मेरा मुनाफा हुआ या घाटा हुआ ये जानने के लिए मेरे को सारा खर्चा चाहिए और सारा इनकम चाहिए, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल एकदम दिमाग से लगा के वैसे हिसाब करना है, जाके एकदम सटीक, एकदम सही, एकदम एक्यूरेट फिगर्स मेरे को मिल सके। और वो तभी मिलेगा जब कंप्लीटली मैं सारा बिजनेस का लेन देन को रिकॉर्ड कर रहा हूं अपना हिसाब किताब में, और उसी को बोलना हिसाब किताब बनाना, और उसी को इंग्लिश में बोलते हैं अकाउंट्स। यही तो है अकाउंट्स। समझ में आ रहे हैं अभी? मैं मकसद यानी कि ऑब्जेक्टिव्स या पर्पस ऑफ अकाउंट्स भी बोल दिया, एडवांटेज भी बोल दिया, और अकाउंट्स क्या है वो भी बोल दिया इन अ सिंगल एग्जांपल। ओके, नंबर 1। नंबर 2, सर टेक्निकली अगर इसी को अगर लिखे तो कैसे लिखेंगे? देखो, मैं कैसे पढ़ाऊंगा मैं बता दे रहा हूं, ऐसे पढ़ाऊंगा। स्क्रीन शेयर होगा, स्क्रीन में अकाउंट्स, ये मेरा व्हाइट बोर्ड जैसा है एक्सेल शीट, और एक्सेल शीट में ही रियल लाइफ में अकाउंट्स भी होता है, तो अकाउंट्स करने का मजा भी लगेगा, रियल लाइफ का फील आएगा। और उसके साथ साथ बुक खुला रहेगा यहाँ पे। सर ये किसका बुक है? अभी आईएससी का बुक नहीं है, अभी एक ही बुक दिखाऊंगा, तो अभी सीबीएसई का बुक है, एनसीईआरटी, फुल फॉर्म क्या है देख लो, नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग। ओके, तो ये मैं दिखाने से पहले मैं एक बार व्हाट इज अकाउंट्स बोर्ड में करा रहा हूँ, और बीच में बोल दिया किस स्टाइल में पढ़ाऊंगा। हर रोज तो ये सब नहीं बोलूंगा, हर रोज तो पढ़ाई होगा। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज अकाउंट्स। व्हाट इज अकाउंट्स बोलने से पहले मैं एक बार सिलेबस दिखाना चाहता हूँ, सिलेबस दिखाना चाहता हूँ अकाउंट्स का क्या है, और उसके बाद अपने व्हाट इज अकाउंट्स बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे। सर सिलेबस के लिए आप दूसरा शीट में जा रहे हो? हाँ, सिलेबस में होमवर्क करके रखा, जाके तुम लोग को समय ज्यादा ना लगे। सर ये सीबीएसई का है? हाँ, सिलेबस मैं सीबीएसई का दिखा रहा हूँ, आईएससी वालों का भी दिखाऊंगा अगला क्लास में। एक क्लास में दो सिलेबस नहीं दिखाना चाहता हूँ। आईएससी वालों का भी ऑलमोस्ट सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ कुछ डिफरेंसेस है, वो मैं बता दूंगा। ओके, तो ये है सिलेबस। हाँ, देखिए 3 पार्ट्स है। Please note there are 3 parts in account syllabus. Number 1 is part A. Number 2 is part B. And number 3 is part C. Part C is a project work. तो सर प्रोजेक्ट वर्क है तो इसको क्लास में अच्छे से करना नहीं पड़ेगा? नहीं, क्लास में नहीं करना पड़ेगा, घर में करना पड़ेगा। हाँ सर, आप हेल्प करोगे? फुल हेल्प करूंगा, प्रॉमिस है, जो भी मेरा हेल्प चाहेगा मिलेगा। अच्छा सर, पार्ट ए और बी,
पार्ट ए और बी तो फुल 90 मार्क्स क्लास में मेहनत करके एकदम इन डेप्थ हो जाएगा। सर कब तक? जनवरी तक। क्यों सर जनवरी तक? क्योंकि फरवरी में एग्जाम है, तो जनवरी तक पूरा बन जाना चाहिए स्ट्रॉन्ग। जनवरी में फिर मेरा प्लान क्या है फेस द बुक के लिए? फेस द बुक का प्लान होगा मॉक टेस्ट कंडक्ट करना, और सर थ्रू आउट द क्लासेस मॉक टेस्ट होगा। हाँ, जैसे जैसे टॉपिक खत्म होगा मॉक टेस्ट होगा। साइंस वाले भी यही करते हैं। क्लियर है? ओके सर। सर समझ में आ गया। अभी सिलेबस दिखाइए। देखो पहला जो चीज है वो है थियोरिटिकल जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, थियोरिटिकल जो चैप्टर्स है उसमें 15 मार्क्स आएगा। तो अपने शुरू करेंगे ये थियोरिटिकल चैप्टर से। आज भी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, और एक कंसेप्चुअल, कोई भी सब्जेक्ट को मास्टर करने के लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए या नहीं होने से चलता है? होना चाहिए। फुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी सब्जेक्ट के बारे में होना चाहिए, तब जाके सब्जेक्ट बैक ऑफ द हैंड आ जाता है। ओके, तो accounting process is 35 marks. We will start with this also. And financial statements is 15 marks, and computers in accounting is 10 marks. सर एक्चुअली ये थोड़ा शीट पूरा नहीं दिख रहा है। हाँ पूरा नहीं दिख रहा है, मैं दिखा रहा हूँ, डोंट वरी। Okay, this is the full. Okay, now you can see. Okay, all right. सर तो बताइए पार्ट ए में 50 और पार्ट बी में 40। हाँ, अब ये जो पार्ट ए एंड पार्ट बी है, दिस कंप्राइजेस दीज टॉपिक्स। ये मैं खोल के लिख दिया क्या क्या टॉपिक्स है, और ये आईएससी का कॉमन है ऑलमोस्ट। ओके, पहला चीज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज वो होगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स। वो क्या होगा? बेसिक कॉन्सेप्ट्स। और ये पहला चीज अभी मैं स्टार्ट कर दिया। मैं जो एग्जांपल दिया ये बेसिक कॉन्सेप्ट का ही एक एग्जांपल है। अभी इसको प्लग इन करूंगा, थियोरेटिकली समझाऊंगा क्या पढ़े। And from the second chapter we will start practical. Recording of transactions is nothing but journal, ledger, trial balance. And then we have BRS, we have depreciation, we have bills, we have rectification, we have final accounts, we have NTO, we have computers. This is the CBSE syllabus for class 11. कोई अगर 90 मिलना चाहता है तो अभी से स्टार्ट करना होगा, और मैं गारंटी दे रहा हूँ। देखो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड, आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेशन, आई एम गारंटिंग एंड ऑन रिकॉर्ड जा रहा हूँ। इतना कॉन्फिडेंस है कि कोई अगर मेरे साथ एकदम लास्ट तक साथ दे, क्लास 11 का लास्ट तक, तो उसका क्लास 11 में 90 आना 90% चांस है। यानी कि 80 तो बात ही नहीं है, बट 90 लाना 90% चांस है। बिकॉज 90 लाने के लिए देखो स्टूडेंट का अंदर में भी कुछ होना चाहिए खुद से, सिर्फ टीचर का पुश से या कोचिंग का विगर से नहीं होगा। सर आपका कोई प्रीवियस स्टूडेंट्स 90 मिला? हाँ, मैं 11-12 बहुत साल पहले पढ़ाता था। जो चौधरीदीप सर है जो इको पढ़ाएंगे आप लोग को, वो 11-12 मेरे से पढ़ा हुआ है, तो एक्सपीरियंस है। he had secured 90. He is also from South Point back in his time. Sir, did you secure? No, I couldn't secure, and that was my dependence. नहीं, मार्क्स के लिए, मार्क्स डोंट मैटर। मैं कंसेप्ट के लिए पढ़ता हूँ, मार्क्स के लिए नहीं। I ranked in CU BCom and CA and this and that, but 11-12 में मेरे को 90 नहीं मिला कभी, ठीक है? But my students got it, and that was my satisfaction and achievement as a teacher. Okay, so सर तो बताइए कि ये जो आप बोल रहे हो ये 9 टॉपिक्स ही है सीबीएसई में। हाँ, पूरा मैं टॉपिक को एकदम आसान करके रख दिया। If anyone wants to copy or take photo, can copy or take photo. तुम लोग क्लास कैसे करोगे? तुम लोग ऑनलाइन क्लास में हमेशा कॉपी और बुक लेके बैठना। जिन लोग के पास बुक नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी ऑफ द बुक हम लोग शेयर कर देंगे। ये जो सॉफ्ट कॉपी ऑफ द बुक मैं रखा यहाँ पे, ठीक है? ओके सर, इसका क्या कोई सोर्स भी है? हाँ, इसका सोर्स भी है, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। NCERT बुक्स डाउनलोड सर्च करना गूगल में, ठीक है? डोंट वरी। ओके, सो आफ्टर टेकिंग दिस लेट अस कम बैक टू बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अपने क्लास शुरू कर रहे हैं विद चैप्टर 1 विच इज बेसिक कॉन्सेप्ट। चैप्टर 1 विच इज
बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ऐसा कोई अलग से चैप्टर नहीं है बुक में, बट अपने नाम दे रहे हैं चैप्टर 1 का बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बुक में चैप्टर 1 का नाम कुछ और ही होगा सर। चैप्टर 1 का बुक में नाम क्या है? पार्ट ऑफ आर बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लास। हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स बोल रहे हैं उसका बुक का नाम क्या है, दिखाइए। बुक का नाम है ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सो यू कैन राइट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग ऑल्सो। सीबीएसई बुक का नाम सेम चीज, कॉमन टॉपिक, सीबीएसई आईएससी में सब मिला के बोला बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ओके, ऑल राइट। नाउ पहला बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं दिया, द फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट विच आई गेव वाज व्हाट इज अकाउंट्स। अकाउंट्स है क्या? तो जो लोग कॉपी लेके कर रहे हो क्लास, वो लोग लिखो मेरे साथ अकाउंट्स है क्या। मैं लिख दूंगा और तुम लोग देख के लिख सकते हो या फोटो भी ले सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। बट फोटो लेके फायदा नहीं है, फोटो लेके तो बाद में लिखना ही पड़ेगा, तो अभी लिख ही लो, एफर्ट ही बचा रहा हूं और बाद में लेजी लगेगा अकेला लिखने में, ठीक है ना? ओके, तो आंसर इट इज अकाउंट्स इज द रिकॉर्डिंग। सर रिकॉर्ड ये शब्द सुना हुआ लग रहा है, हाँ आज ही तो बोला। हिसाब किताब में लिख लेना, सब नोट कर लेना, सालाना जितना भी खर्चा है, जितना भी इनकम है, जितना भी कुछ है जो बिजनेस के लिए तुम किए हो, उसको रिकॉर्ड करना ही अकाउंट्स होता है, बोला आज, ठीक है? तो वही लिखा रहा हूं, अकाउंट्स इज रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के साथ साथ बहुत कुछ होता है, अपने सेल्फ रिकॉर्ड करके रख कोई ना देते। अकाउंट्स इज रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, सॉरी एनालाइजिंग पहले नहीं, पहले और भी चीज लिखते हैं, क्लासिफाइंग, summarizing, analyzing and reporting। रिपोर्टिंग को बहुत किताब में कम्युनिकेटिंग भी बोलता है, कुछ कुछ किताब में कम्युनिकेटिंग एंड रिपोर्टिंग को अलग बोलता है, कोई इशू नहीं है, समझो चीजों को, काफी है। एंड रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, एंड रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। ओके, so accounts is recording, classifying, summarizing, analyzing and reporting of transactions। मैं हर एक शब्द को अलग से समझाऊंगा, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग एंड ट्रांजैक्शंस, ये हर एक शब्द को अलग से समझाऊंगा, तब एक लाइन समझ में आएगा, तब तुम उसको लिखोगे तो वो रट के लिखना नहीं होगा, वो समझ के लिखना होगा। And I believe in this kind of teaching and this kind of acquisition of knowledge, जहां पे अपने हर चीज को सही रूप में समझ के सीख रहे हैं, उसी को सीखना कहता है मेरा दोस्त। रट के कौन क्या करता है लाइफ में, ठीक है ना? तो सर ये समझाइए फिर क्या है रिकॉर्डिंग का मतलब, क्या है रिकॉर्ड करना, टू मेंटेन रिकॉर्ड्स, यू गाइस नो। क्लासिफाइंग का मतलब क्या है सर? क्लासिफाइंग का मतलब होता है, सपोज करो एक खर्चा किया, एक खर्चा किया, मैं एक एम्प्लॉय को तनख्वाह दिया, इसको मैं क्या बोलूंगा, परचेज ऑफ मटेरियल या सैलरी? सैलरी। टू क्लासिफाई एज पर यू नो द राइट थिंग, क्लासिफाइंग, टू मेंटेन द राइट यू नो क्लासिफिकेशन। ओके, व्हाट इज समराइजेशन सर? समराइज करना मतलब एक चीज को सब कोलेट करके समरी बनाना, ऑफ कोर्स समरी बनाना सर। जैसे जैसे खर्चा हुआ साल में, पूरा सैलरी खर्चा हुआ 5 लाख, वेजेस खर्चा हुआ 5 लाख, परचेज ऑफ मटेरियल किया 6 लाख, तो 16 लाख मेरा टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस क्या है? एक समरी है, समराइज करना। फिर एनालाइज करना, सर एनालाइज कैसे करते हैं? लास्ट साल देखा खर्चा था 10 लाख, इस साल टोटल खर्चा हो गया 16 लाख, तो मैं बोलूंगा बाप रे 60% बढ़ गया, मैथमेटिकली बोला, इसलिए मैथ्स दरकार है कॉमर्स में। देखो हर चीज का एप्लीकेशन दिखा रहा हूं, ठीक है? तो एनालाइज करना with the help of mathematical you know tools is what? Analyzing। okay, and lastly reporting। reporting
रिपोर्टिंग इज नथिंग बट ये सारा चीज जब बन जाएगा, ये रिपोर्ट्स जब बना लोगे, रिकॉर्ड्स जब बना लोगे, क्लासिफाई करके, समराइज करके, एनालाइज करके, तुम क्या करोगे? इसको खाओगे कैसे? ये रिपोर्ट्स का क्या इस्तेमाल करोगे? एंड यूज क्या है? खाओगे कैसे बोलने का मतलब, एंड यूज एक ही है, इंफॉर्मेशन देना। किसको सर? जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। कौन है सर यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर बेसिकली द इन्वेस्टर्स। बिजनेस में इन्वेस्ट जो किया है वो जानना चाहेगा ना क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। द मैनेजमेंट, बिजनेस जो कर रहे हैं, कंपनी का मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर who else? The employees, yes sir. Who else? External बहुत पार्टी इंटरेस्टेड है, जैसे कि गवर्नमेंट का टैक्स डिपार्टमेंट जानना चाहता है तुम टैक्स चोरी कर रहे हो कि नहीं, तो तुम्हारा बिजनेस का इनकम जानना चाहेगा, ठीक है ना। तो बहुत सारा इंटरेस्टेड पार्टीज है टू you know to whom we shall report, and that is reporting. तो भूलना मत, ये 5 चीज है मिला के द अकाउंट्स। सर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ व्हाट? ऑफ ट्रांजैक्शंस। अभी मैं ये शब्द को समझाऊंगा ट्रांजैक्शन, तो दो शब्द आप लोग इफेक्टिवली सीख जाओगे। एक है अकाउंट्स क्या है और दूसरा ट्रांजैक्शन क्या है। क्योंकि अकाउंट्स में मैं लिखा ट्रांजैक्शन, तो ट्रांजैक्शन का मतलब आना चाहिए, ट्रांजैक्शन का मतलब आ जाता है तो एक चीज आ गया ट्रांजैक्शन का मतलब, उसके साथ साथ और एक मतलब सीख गया क्या? व्हाट इज अकाउंट्स। क्लियर है? ओके सर, नाउ व्हाट इज ट्रांजैक्शन देन? व्हाट इज ट्रांजैक्शन? ये दूसरा सवाल हो गया, और दूसरा सवाल से पहला सवाल भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि पहला सवाल में एक शब्द समझ में नहीं आया था, वो है ट्रांजैक्शन। समझ में आ रहा है कैसे पढ़ रहे हैं? हम लोग पहले पढ़े व्हाट इज अकाउंट्स, जो पहला पढ़ना चाहिए अकाउंट्स का पहला क्लास में, ठीक है ना। तो व्हाट इज अकाउंट्स? अकाउंट्स इज द रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। एंड व्हाट आर ट्रांजैक्शंस देन? ट्रांजैक्शंस आर व्हाट एम आई गोइंग टू से नाउ, ठीक है। ट्रांजैक्शंस एग्जैक्टली मैं जो बोलूंगा वही होगा, बट वो पहले समझेंगे स्टोरी लेके, फिर समझ के पढ़ेंगे, रट के नहीं। अप्रोच को सुधारेंगे तभी तो जाके पूरा एकदम उस लेवल में पढ़ाई होगा जिस लेवल में करना चाह रहे। ओके, लेट अस सी। अच्छा बोलना, कोरोना वायरस ये पैंडेमिक है, ग्लोबल पैंडेमिक, ये क्या एक ट्रांजैक्शन है या इवेंट है? यू कैन चैट एंड आंसर। इज कोरोना वायरस अ pandemic or an event? I'm sorry, it is a pandemic. I mean, is it a transaction or an event? कोई लिखो चैट में जिसको पता है। Is it a business transaction? कोरोना वायरस क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन लगता है या नॉर्मल इवेंट है, ग्लोबल पैंडेमिक है? Anyone can write. Okay, okay, all right. Coronavirus is not a transaction, is not a transaction. It is a normal, it is an event, not a normal event, but it is an event. It's a global pandemic. You're correct, all of you. Jyotishka, Adia, Gaurav, Anjali, very good. Okay, so coronavirus is basically a global large scale pandemic and an event. But how can it be a transaction? मेरा बिजनेस में डायरेक्टली क्या कुछ पैसा जा रहा है या आ रहा है? नहीं। हाँ, इकोनॉमी खराब हो गया, मेरा मार्केट खराब हो गया, मेरा मार्केट खराब हो गया तो मेरा बिजनेस में इंपैक्ट आया, हर एक जन का बिजनेस में इंपैक्ट आया, उतना तक तो ये इवेंट है, ये इवेंट इन्फ्लुएंस कर रहा है। बट क्या इसका रिकॉर्डिंग होगा? ट्रांजैक्शन कोई लिखेगा, कोई कंपनी लिखेगा इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, कोरोना वायरस अकाउंट डेबिट, कोरोना वायरस अकाउंट क्रेडिट? नहीं। क्यों सर? क्योंकि ये मेरा कोई लेन देन नहीं है। और एक एग्जांपल लूंगा समझाने के लिए, और एक एग्जांपल लूंगा। मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूं, ट्रांजैक्शन क्या है। लेट्स से एक साइक्लोन अम्फन आया था, वो भी क्या वो एक ट्रांजैक्शन है या सिर्फ इवेंट है? सिर्फ इवेंट है, वो भी ट्रांजैक्शन नहीं है, सिर्फ इवेंट है। लेट्स से उस वजह से उस दिन कोई काम नहीं हुआ, कोई ऑफिस में ना वर्क फ्रॉम होम हुआ ना ऑफिस जाके हुआ, क्योंकि इंटरनेट लाइंस डिसरप्ट हो गया, मेरा क्लासेस भी बंद था उस दिन। हाँ सर, कैसे करेंगे? डेफिनेटली किया भी नहीं। सो द आइडिया इज ये जो
ग्लोबल चीजें हैं, ये जो इवेंट्स है ये सिर्फ इवेंट्स है, ट्रांजैक्शंस नहीं। तो सर ट्रांजैक्शंस क्या है वो तो बताइए। बिल्कुल बताऊंगा। ट्रांजैक्शंस हो गया, ट्रांजैक्शंस आर इवेंट्स, ट्रांजैक्शंस आर आल्सो इवेंट्स। इवेंट्स तो सभी कुछ है, मैं ये क्लास ले रहा हूं ये भी इवेंट है, डेमो क्लास। मैं सेमिनार लूंगा वापस नेक्स्ट वीक, वो भी इवेंट होगा। और अगर मैं लेन देन करता हूं, कोई ट्रांजैक्शन करता हूं, वो इवेंट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। सर कैसे समझाइए? अगर मैं वही चीज डेमो क्लास ना रख के मैं जब रियल क्लास शुरू करूंगा, रियल क्लास जिसमें एडमिशन लेने वालों को पढ़ाया जाएगा, एडमिशन लेके जो लोग को पढ़ाया जाएगा, वहां पे ये इवेंट नहीं रहेगा, ये इवेंट को ट्रांजैक्शन कह देंगे। इवेंट तो रहेगा ही, इवेंट तो हर चीज है, मतलब हर ट्रांजैक्शन इवेंट है, बट हर इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं है। हाँ, यानी कि transactions are economic events, you can write economic events which can change the financial position, the financial position of a business. They must be capable of being measured in monetary terms, must be expressed in monetary terms. यानी कि once again ट्रांजैक्शंस क्या है सर? ट्रांजैक्शन कुछ इकोनॉमिक घटनाएं हैं, इकोनॉमिक इवेंट्स है जो कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस या एंटिटी को परिवर्तित कर दे, चेंज कर दे, विच चेंजेस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। सर यानी कि हर इवेंट्स आपका फाइनेंशियल पोजीशन चेंज नहीं करता है। कैसे करेगा भाई? मेरा बिजनेस का खर्चा नहीं हुआ, मेरा बिजनेस का इनकम नहीं हुआ, मेरा बिजनेस का कुछ लेना देना नहीं है, तो वो मेरा बिजनेस का ट्रांजैक्शन है ही नहीं। वो क्या है? वो एक इवेंट है। और वही इवेंट, कोई इवेंट अगर मेरा बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन को इंपैक्ट करे, चेंज करे, तो वैसा इवेंट मेरा ट्रांजैक्शन है। और अकाउंट्स में मैं क्या लिखूं, क्या रिकॉर्ड करूं, क्या एनालाइज करूं, क्या समराइज करूं, क्या रिपोर्ट करूं, जो घटनाएं मेरे को इंपैक्ट करेगा या जो घटनाएं मेरा कोई लेना देना नहीं है, जो घटनाएं मेरे को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा, मेरा फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करेगा। इसीलिए अकाउंट्स क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ इवेंट्स और रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस, समझ में आया? इसीलिए अकाउंट्स इज रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। अभी अकाउंट्स का डेफिनेशन फुल क्लियर हुआ। एंड ट्रांजैक्शंस आर व्हाट? ट्रांजैक्शंस आर इकोनॉमिक इवेंट्स व्हिच चेंजेस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। एंड अकाउंट्स में जो भी हम लोग हिसाब किताब में लिखते हैं, मॉनिटरी यूनिट, मॉनिटरी यूनिट का एक्सप्रेशन में लिखते हैं या विदाउट मॉनिटरी यूनिट लिखते हैं? विदाउट, विथ मॉनिटरी, मनी देके लिखते हैं। खर्चा कितना लाख का हुआ अभी बोल रहा था। तो transactions must be expressed in monetary terms. And lastly but not least, हम लोग क्या सीखे? अभी सीखे कि all transactions are events, all transactions are events, but all events are not transactions, are not transactions. Okay, all transactions are events, but all events are not transactions. Clear है? So this is the funda of transactions. Okay, sir, हाँ, पैसे का लेन देन को ट्रांजैक्शन कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, नाउ सो सर ये कॉपी कर लिए? हाँ कॉपी कर लिए। तो कॉपी कर लिए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। कॉपी करने के लिए 1 मिनट चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, 30 सेकंड्स लो, कॉपी इट, नो वरीज।
ओके ऑल राइट ऑल राइट सो कॉपी हो गया मैं आगे बढ़ रहा हूँ ओके सर बताइए कि ये जो दो चीज हम लोग सीखे दूसरा वाला चीज को और थोड़ा अच्छे से बताइए ना ट्रांस एक्शन opposite action trans means opposite and action means काम लेन देन opposite है ना हिंदी में इसीलिए लेन देन बोलते हैं ठीक है तो ये है फंडा अच्छा सर तो ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को अपने अकाउंट्स कहते हैं हाँ रिकॉर्ड नहीं रिकॉर्ड सिर्फ नहीं रिकॉर्ड क्लासिफाई समराइज एनालाइज रिपोर्टिंग ओके ओके सर सर बट हम लोग और एक टर्म सुनते रहते हैं अकाउंट्स में सिनोनिमस है अकाउंट्स के साथ वो है बुक कीपिंग सुने हो ना बहुत लोग बुक कीपिंग वेस्ट बंगाल बोर्ड में एडिशनल सब्जेक्ट रहता था बुक कीपिंग मेरा भी था ठीक है 9-10 में तो सर तब से आपका अकाउंट शुरू हो गया हाँ तो द आइडिया इज ये जो ये जो बुक कीपिंग टर्म है ये टर्म का मीनिंग क्या है व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस टर्म कॉल्ड बुक कीपिंग ओके व्हाट इज बुक कीपिंग ओके नाउ मैं ऐसे पढ़ाता हूं मैं बोलता हूं बुक कीपिंग अकाउंट्स का छोटा भाई है और अकाउंट्स बुक कीपिंग का बड़ा भाई है सर ये लिखने से मार्क्स थोड़ी ना आएगा आप भी हद करते हो ठीक है ये मार्क्स नहीं आएगा समझाने के लिए था अभी तो मार्क्स लाने वाला चीज आएगा अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग से लेके रिपोर्टिंग सारा फंक्शंस है अकाउंट्स कंप्राइजेस रिकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग ऑल द फंक्शंस bookkeeping is only the recording function of accounts मतलब अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे एनालाइज कर रहे समराइज कर रहे कम्युनिकेट कर रहे रिपोर्ट कर रहे उसमें सारा फंक्शंस को बुक कीपिंग नहीं करते अकाउंट्स का सिर्फ रिकॉर्ड वाला फंक्शन को रिकॉर्ड मेकिंग को अपने क्या कहते हैं बुक कीपिंग तो लिखो बुक कीपिंग is the record making phase of accounting अकाउंटिंग का रिकॉर्ड मेकिंग फेज को अपने बुक कीपिंग बोलते हैं मतलब हिसाब किताब में जो रिकॉर्ड होता है रिकॉर्ड को अपने अकाउंट्स भी बोल सकते हैं बिकॉज बुक कीपिंग इज अकाउंट्स बट ऑल ऑफ अकाउंट्स इज नॉट बुक कीपिंग मतलब अकाउंट्स में एक फंक्शन तो रिकॉर्डिंग है तो रिकॉर्डिंग भी अकाउंटिंग है बट रिकॉर्डिंग वाला फंक्शन को स्टैंड अलोन अपने क्या कह सकते हैं बुक कीपिंग समझ में आया ना ऐसे समझो हर चीज को तो बुक कीपिंग इज द रिकॉर्ड मेकिंग फेज ऑफ अकाउंटिंग तो मैं जो बोला था छोटा भाई हुआ उसका अंदर का एक फेज हुआ सबसेट हुआ और सुपरसेट उसका कौन है अकाउंट्स क्लियर है तो सर ये डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग ये भी इंपॉर्टेंट है हाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार होता है देखो थियोरेटिकली सारा क्वेश्चंस भी तैयार होते जा रहा है चैप्टर ही पढ़ ले रहे और बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी डेवलप हो जा रहा है ठीक है तो एक थियोरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है इसमें कि डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग ओके सर बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग में कौन जीतेगा बता रहा हूं जीतेगा कोई नहीं ये कहने का तरीका है वर्सेस ठीक है सो बुक कीपिंग ऑफ कोर्स अकाउंट्स जीतेगा अकाउंट्स बड़ा है ठीक है बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग ओके सर बताइए क्या डिफरेंसेस होगा ओके तो बोलो प्रोसेस ओनली रिकॉर्ड मेकिंग फेज या फेज point of difference only record making phase includes recording as well as other
recording other as well as other phases. ओके, अच्छा बोलो, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में सोच के बताना, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में जो नॉलेज है किस में ज्यादा लगेगा? ऑफ कोर्स जाहिर है अकाउंटिंग ज्यादा बड़ा है तो अकाउंटिंग में ही नॉलेज ज्यादा लगेगा। तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में नॉलेज रिक्वायर्ड विल बी मोर वेयर, knowledge required will be more in knowledge required will be less in bookkeeping and more in accounts। अच्छा बोलो, टाइम किस में ज्यादा लगेगा? जो बड़ा है उसमें या जो छोटा है उसमें? जो बड़ा है उसमें। तो टाइम टाइम लेस एंड मोर, टाइम रिक्वायर्ड लेस एंड मोर। कॉस्ट बोलो, कॉस्ट तो नॉलेजेबल ज्यादा अकाउंटेंट को होना पड़ेगा, तो अकाउंटेंट को ज्यादा तनख्वाह देना पड़ेगा, तो अकाउंटिंग का कॉस्ट भी ज्यादा होगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा, तो अकाउंटिंग का कॉस्ट इज ऑल्सो मोर कंपेयर टू दैट ऑफ बुक कीपिंग। और एक वाहियात डिफरेंस होता है, क्लास 11 लेवल में बहुत लोग लिखता भी है, बुक कीपिंग कौन करता है? बुक कीपर। अकाउंटिंग कौन करता है? अकाउंटेंट। वाहियात डिफरेंस इसलिए बोला, ठीक है। हु डज इट, हु डज इट, ठीक है। यहाँ पे बुक कीपर, बुक कीपर एंड यहाँ पे अकाउंटेंट। ऐसा बहुत सारा डिफरेंस और भी है छोटा मोटा, तो यही है फंडा ऑफ। और एक सवाल, डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, जल्दी से लिख लो जो लोग लिख रहे हो, एक 1 मिनट। Okay, all right guys, let us quickly summarize what we have learned so far। we have learned we have learned chapter 1 में कि what is accounts। कैन यू प्लीज रिपीट वंस? रिपीट यानी कि दिखाऊं कौन सा? मैं सारा रिपीट करूं, एक बार सुनना अंजलि। तो मैं बोल रहा था कि व्हाट इज अकाउंट्स से चालू किए, अकाउंट्स का टेक्निकल नो हाउ। मैं बोला अकाउंट्स इज रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। उसके बाद मैं हर एक फंक्शन को स्टैंड अलोन तरीके से समझाया, यानी कि वी हैड लर्नड what is recording, what is classifying, what is summarizing, what is analyzing and what is reporting। लास्टली हम लोग ये भी समझे कि ट्रांजैक्शंस क्या है, जो अपने रिकॉर्ड करेंगे वो है क्या। ट्रांजैक्शंस में मैं बोला ट्रांजैक्शंस आर बेसिकली इकोनॉमिक इवेंट्स, नॉट ऑल इवेंट्स, ओनली इकोनॉमिक इवेंट्स, एंड दोज इकोनॉमिक इवेंट्स व्हिच फाइनेंशियली इंपैक्ट अस, व्हिच चेंजेस आवर फाइनेंशियल पोजीशन and also which can be expressed in terms of money, which are capable of measured in monetary terms, ठीक है। and all transactions are events but all events are not transactions। okay, lastly अपने देखें बुक कीपिंग क्या है। बुक कीपिंग है अकाउंट्स में जो रिकॉर्ड मेकिंग पेज होता है, उसको अगर अकेला कुछ कहा जा सकता है वो है बुक कीपिंग। और बुक कीपिंग और अकाउंट्स में फर्क क्या है, डिस्टिंक्शन क्या है, वो अपने देखे और आप लोग को लिखने के लिए दिया जो मिस किया लिख लो। और उसके बाद आगे आज का लास्ट टॉपिक में मैं पहुंच गया, लास्ट टॉपिक बोल के, या प्लीज राइट द डिफरेंस। many people were writing the difference, I just moved it। I hope all have written। okay, so the last thing
The last thing for the day, before that, before I go to the Q&A session, Q&A session के बाद आज रैप अप करेंगे. Q&A session में जाने से पहले मैं लास्ट एक चीज बोलना चाहता हूँ, सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग. नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक इज सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग. तो ये क्वेश्चन 1 था, ये क्वेश्चन 2 था, ये क्वेश्चन 2 टॉपिक 2 जो भी बोलो, ये टॉपिक 3 था और ये टॉपिक 4 था. आज मॉडेस्ट चार्ट टॉपिक डिस्कस हुआ, बट ऑफ कोर्स तुम लोग को समझ में आ रहा है कि 40 मिनट 45 मिनट हम लोग को मिला. 45 मिनट में चार्ट टॉपिक खुलासा बात हो गया सिलेबस के साथ. टेक्निकल कंटेंट तो 45 मिनट से मिला, बिकॉज 45 मिनट्स वी हैड डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मोटिवेशनल एंड आवर ओरिएंटेशन. ओके, नाउ next class, when we have a full-fledged 1.5 hours to 2 hours classes in accounts, you will get more and more and more and more. Okay, all right sir. Question 4 और topic 4 क्या है? लास्ट चीज जो जिसके बाद अपने Q&A सेशंस आप लेंगे. Question 4 या topic 4 कुछ ऐसा है कि systems of accounting. Systems of accounting मैं बता दूं, अकाउंट्स करने का 2 सिस्टम है. 2 सिस्टम है. मैं खाली नाम बोल के Q&A सेशन में जाऊंगा, खाली नाम बोलूंगा और वो अगला क्लास कंटिन्यू होगा और उससे अपने जो सीखेंगे मतलब अनइमेजिनेबल. ठीक है. द 2 सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग ग्लोबली known as single entry system and double entry system. मैं ये दोनों सिस्टम के बारे में साइंटिफिकली बात करूंगा नेक्स्ट क्लास, बट वो बात करने से पहले एक बार जस्ट बता दूं ये दोनों सिस्टम है क्या. ये दोनों सिस्टम है क्या मैं बता दूं. इन दोनों सिस्टम में साइंटिफिक है डबल एंट्री. द साइंटिफिक वन इज डबल एंट्री एंड द अनसाइंटिफिक वन इज सिंगल एंट्री. क्यों सर? क्योंकि सिंगल एंट्री में कंप्लीटली ऑल ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड. तो सर ये नंबर 2 में लिखिए ना. नंबर 1 में लिखिए ये इनकम्प्लीट है सिंगल एंट्री, हाँ, और ये कंप्लीट है. इसीलिए ये कंप्लीट है तो साइंटिफिक है और ये अनसाइंटिफिक है. एंड लास्टली बोलो, बहुत आसान है कि अगर पॉपुलर कौन होगा, जो साइंटिफिक होगा या अनसाइंटिफिक होगा? ऑफ कोर्स it is popular and globally accepted and unpopular. सर ये डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री हो गया, बट हम लोग तो जाने नहीं सिंगल एंट्री है क्या और डबल एंट्री है क्या, वो नेक्स्ट क्लास में होगा. तो डिफरेंस हो गया और थोड़ा बहुत फीचर्स समझ में आ गया सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग का. ओके सर, एफिशिएंटली पढ़ा दिए. हाँ, एकदम एफिशिएंसी के साथ पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. तो सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री आर 2 सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंट करने का 2 तरीका है, 2 फॉर्मल वे है. एक है सिंगल एंट्री, एक है डबल एंट्री. सिंगल एंट्री है इनकम्प्लीट, डबल एंट्री है कंप्लीट. तो सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट है तो अनसाइंटिफिक है, डबल एंट्री वैसे ही कंप्लीट है तो साइंटिफिक है, और साइंटिफिक है तो पॉपुलर है और वो अनपॉपुलर है. और मैं बता दूं, सिंगल एंट्री के कॉस्ट इज लेस टाइम and less cost and less knowledge. of course समझ में ही आ रहा है. और यहाँ पे सब उल्टा होगा, more time, more cost and more knowledge. Okay guys, we call it a wrap, but we have lot to discuss, so just don't leave the session yet. ये कॉपी कर लो जिन लोग को कॉपी करना है, और मैं बात करूंगा अभी मेरा Q&A सेशन होगा. जिसका भी जो भी सवाल है वो करो, जिसका सवाल नहीं है वो सवाल सुन लो और वो सवाल को मैं क्या आंसर दे रहा हूँ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. तो Q&A सेशन और डाउट क्लियरिंग सेशन मैं हर क्लास में कराता हूँ और हर क्लास में होमवर्क देता हूँ. होमवर्क मेरा रहता है कि नेक्स्ट क्लास आने से पहले लास्ट क्लास में जो हुआ हमेशा करके आना अच्छे से. और एक्सक्लूसिवली जैसे क्लास नॉर्मल क्लासेस स्टार्ट होगा मैं रेगुलर होमवर्क दूंगा. तो आज का क्लास का भी ऐसे भी होमवर्क तो करना ही चाहिए. जितना पढ़ाया वो घर में अच्छे से सोचना, रिफ्लेक्ट करना, पढ़ना. डाउट्स हो तो मेरे को पूछना, ये हमेशा फैसिलिटी रहता है. कोई भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट मेरे को व्हाट्सएप फॉलो कर देता है, मैं डाउट क्लियरिंग कर देता हूँ, ईदर थ्रू व्हाट्सएप वॉइस नोट और थ्रू टाइपिंग.
ओके, एंड हर क्लास के बाद, हर क्लास के बीच में whatever is your doubt you can always chat. I have always given that option. Okay, some people are using it, so using that only I will request you, abhi yahan tak copy karne ke baad please ask me your doubts, your questions, your technical doubts, technical questions, non technical doubts, administrative doubts, anything you want to know under the sun. Okay, nowadays NCERT is enough or we have to buy another book? Okay, अभी के लिए एनसीईआरटी बुक काफी है या हम लोग को नया बुक खरीदना पड़ेगा? इज अ क्वेश्चन फ्रॉम गौरव. गौरव इज अ एफटीबी. गौरव, हाँ गौरव, गौरव हम लोग का स्टूडेंट है. ही इज वन ऑफ द फर्स्ट एडमिशंस इन एफटीबी दिस एकेडमिक कैलेंडर. सो गौरव, या लाइक आई सेड अर्लियर आल्सो, आप लोग का एनसीईआरटी का बुक, सीबीएसई वालों का एनसीईआरटी का बुक अभी के लिए काफी है, क्योंकि मैं खुद सम बना के दे देता हूं और मेरा सम अच्छा लेवल का है. ठीक है, तो आप लोग के लिए अभी जब बाहर नहीं निकल पा रहे हो, बाहर जब मुश्किल हो रहा है निकलना, बुक स्टोर बंद है, आधा से आधा चीज अवेलेबल नहीं है, तो अभी के लिए एनसीईआरटी का ऑनलाइन बुक काफी है. क्योंकि मैं तो हूँ बुक, मेरा तो बुक ही नहीं लगता है. देखो बुक आज खोले ही नहीं, बुक आज खोले ही नहीं, मेरा व्हाइट बोर्ड में ही क्लास चल गया. ठीक है, तो काफी है. ओके, एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर डाउट? बाद में जाके खरीद लेना. Any other question, doubt? Okay, now before I wrap it, I will request you guys to take note of couple of things. You have my number, which I have shared today at the beginning. Please have this. Okay, you know my name. I'm once again writing. Okay, and apart from this, in our posters which we had shared, numbers, other numbers are also given. Although if you don't get me on my number, phone me, you can always WhatsApp me. I will always respond. This week, that is today and tomorrow, we are giving demo classes. You must attend and see. It will be an eye opener for all of you that what is commerce all about, क्या क्या पढ़ाई है, एंड दूसरा कैसे पढ़ाया जा रहा है हम लोग का कोचिंग में. जो प्रोमिसेस मैं किया, जो कमिटमेंट मैं किया, वो निभेगा या नहीं. एंड ऊपर से अगला हफ्ते से अपने जब फुल फ्लेजेड क्लास शुरू करेंगे, क्योंकि जून से दिसंबर होता है 7 मंथ्स होता है, और जनवरी लेके 8 मंथ्स होता है. 8 मंथ्स में अगर अपने पढ़ाई नहीं करते हैं तो रिजल्ट अच्छा नहीं हो पाएगा. इसीलिए जून में वी हैव टू स्टार्ट बाय हुक और क्रुक. एंड बाय हुक और क्रुक क्यों? बाय ऑनलाइन. मैं जो प्लान बताया. ओके, एंड tomorrow we have maths class at 11:30. Tomorrow at 2 we have BST. Maths class is by Aditya Goenka sir. Tomorrow BST class is by Chandradeep sir. Today abhi 2 p.m. we have a session by Chandradeep sir on eco. So please attend all the demo classes. After that, talk to us, talk to our admin head. He has also forwarded you guys unka number se, so you can reply to him, also ask for him any guidance, anything. You can directly contact me, you know me. Okay, that's the word of advice. Without any further ado, thanks for attending today's session. A very very best wishes from my side. Do all the demo classes, let me know how you find it. We will also share our feedback forms and like to hear from you. Thank you guys.